नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NRKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। So Pradeep ji, Mr. Jarange Patil has been pacified. Yes, everybody is happy. Yes, we will know what the ordinance actually says when it becomes official. Only a draft ordinance, I believe, has been presented to him, and he is very, very happy. And number two, the India alliance, I think, is now formally over because Nitish Kumar Sahab is now going back to the BJP. Anything? I mean, his divorce from the BJP earlier also was a surprise. Suddenly he decided that he is going with Lalu Yadav, and then we didn't see any kind of reaction from the BJP the way the divorce partner behaves. So everything was so smooth. Even when the divorce with BJP was absolutely smooth, nothing really. There's no reactions. And this also is another easy divorce, where he is going back to his old partner. And they're smooth. No Lalu Yadav is saying anything. No Congress kuch bol raha hai. No BJP is talking about it. This sounds like the marriage of Richard Burton and Elizabeth Taylor. They separated and got married to each other about 7 times. Yes, sir. So, which is fantastic, I think. So he's Elizabeth Taylor. I don't know who's Elizabeth Taylor here, but looks like maybe Nitish Kumar, because on the other side there's Mr. Modi. In any event, I think the last time somebody named a politician Elizabeth Taylor was Pramod Mahajan, when he called Sharad Pawar Elizabeth Taylor. That's right. And then the NCP was up in arms everywhere. All the workers were trying to tip off with the BJP party offices, all kinds of things. Yeah, but the best was Atal Bihari Vajpayee. वो के बारे में जो शरद पवार जी ने बोला, उसके ऊपर जो लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि भाई बिन दुल्हन का दूल्हा पहली बार देखा है, ऐसा शरद पवार जी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। लेकिन जब वाजपेयी साहब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार बने, शरद पवार जी चुप थे, तब उनके पास कुछ कहने को नहीं। But he in fact supported him. I mean, he said, I want, when he opposed Sonia Gandhi, a non-Indian, yes, he did, by birth should not be the Prime Minister. That's right. That's what he said. And he's now back with Sonia Gandhi ji. Because now Sonia ji has no chance of becoming Prime Minister ever again. So, well, good for him. But let's ask प्रदीप पेशकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के। प्रदीप पेशकर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। जय सिया राम सर, अरे जय सिया राम। तो प्रदीप पेशकर साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो क्लेम था कि भाई हम लोग अपने वादे हमेशा निभाते हैं, वो आज दोबारा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और जो इस वक्त सरकार में महाराष्ट्र की, वो फिर साबित हो गया कि भाई हमने कहा था कि मराठा आरक्षण हम देंगे, हमने दे दिया। जैसे राम मंदिर बनाने के लिए बोला था, राम मंदिर बन गया। आर्टिकल 370 रिपील होना था, हो गया। 35A रिपील होना था, हो गया। और वर्बल ट्रिपल तलाक, उसके ऊपर बैन लगेगा, लग गया। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाना था, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो बन रहा है और बल्कि बिफोर टाइम बन रहा है। और तो और छोड़िए प्रदीप जी, एग्जैक्टली ये प्रदीप जी स्टूडियो वाले प्रदीप जी, तो मेरे सामने प्रदीप जी वो नहीं। आपको भी वैसे ये जान करके खुशी होगी कि योगी आदित्यनाथ जी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया ही है, बाकी सब बनाया है, लेकिन अभी जो नदियों का जो नेटवर्क है पुराना, भारत में जो आदिकाल से जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, जिसको हम लोग हिंदी बेल्ट कहते हैं, ये वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, इन सब जगह के बीच में नदियों के ऊपर कश्तियों में चलता था सर। इट वाज अ रिवर नेटवर्क दैट इज बीइंग रिवाइव्ड एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। आई एम टेलिंग यू, आफ्टर द राम मंदिर, I think this will be the greatest achievement of the BJP if the old riverine network of India can be revived. प्रदीप पेशकर साहब, तो आज जो झरंगे पाटिल साहब के साथ जो हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर, प्लीज। ये तो पिछली सरकार में जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तभी उन्होंने दिया था आरक्षण।
जी। बीजेपी की सरकार ने, लेकिन वो हाईकोर्ट में भी उसको यश मिला, हाईकोर्ट में भी वो टिका रहा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। ये बात कहने लायक है। और वो सीरियसली ना लेने की वजह से, सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने ना रखने वजह से इतना सारा समाज को झेलना पड़ा। तो लेकिन जरांगे साहब के पूरे प्रयास के साथ 4-5 महीना उन्होंने अनशन किया। ये सारा 2-3 बार उसमें एजिटेशन हुए और इसके बाद में आखिर में जो कहा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी और देवेंद्र जी और अजित पवार जी ने जो कमिटमेंट बोला था वो आज करके दिखाया। जबरदस्त। और 100% मराठा समाज आज खुश है। वो सरकार के जो कमिटमेंट किया उसके ऊपर सरकार भी अड़िग है और जरांगे साहब और उनकी टीम भी सेटिस्फाइड है। तो अभी जो कानूनी प्रोसेस है वो बिल्कुल अगले 15 दिन 20 दिन जो भी लगेंगे वो कानूनी प्रोसेस भी पूरी होगी, वो उनको यकीन आ गया। तो मैं बोलता हूं कि जो कहते हैं वो करते हैं। ये जो मोदी जी का स्लोगन है वो आज मुख्यमंत्री जी ने सच करके दिखाया है। पेशकर साहब, क्या ये प्रभु राम का कृपा है? जब मोदी साहब ने कहा कि राम मंदिर पुनर्निर्माण वो डेट है और भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर घोषित हो में अपने आप में होना एक सेम डेट है जो जिस दिन राम मंदिर का पुनर्निर्माण क्या हुआ था। और उसके बाद सब संकेत अच्छे अच्छे लग रहे। ममता बनर्जी वहां फूट गए, यहां नीतीश कुमार फूट गए, यहां आपके जरंगे पाटिल जी मान गए। यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम अच्छी खबर सुन रहे हैं। और ये क्या भगवान राम का कृपा है जो मोदी साहब कह रहे हैं कि इट इज राम मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद भारत एक जायंट रिलीफ लेने वाले हैं? नहीं नहीं, मैं ये ऐसा नहीं मानूंगा। भगवान राम का पुनर्प्रतिष्ठा जो है वो तो पूरे भारतवर्ष के लिए ठीक है, राजनीति से उसका क्या लेना देना। जो हमने कमिटमेंट की थी भारतीय जनता पार्टी ने वो आज से नहीं, वो स्थापना की तरफ से की थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, वही बनाएंगे, और वो पूरा हो गया। लेकिन ये जो हो रहा है, जरंगी जी के लिए तो प्रयत्न चालू थे, वो आज उसकी फलश्रुति आ गई, ये अच्छा बात है। लेकिन जो आपने नीतीश कुमार जी का बोला, ममता बनर्जी का बोला, इसमें ना एक मराठी में एक कहावत है, एक स्टोरी है। एक राजा था, राजा के पास एक तोता रहता था। तो वो एक दिन अचानक सवेरे राजा उठे और देखा तो तोता हिल नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, तो शायद वो मर गया। लेकिन राजा ने सब वैद्य को बुलाया और पूछा कि भाई इसको देखो। तो राजा के सामने राजा का लाडला तोता मर गया, ये कौन बोलेगा? तो एक बोल रहा है कि उसको आंख नहीं खोल रहा है, दूसरा बोल रहा है सो रहा है, दूसरा बोल रहा है वो हिल नहीं रहा है, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि तोता मर गया कहने का। तो यही बात आज इंडिया आघाड़ी की है। तो हर कोई बोल रहा है कि ये निकल गया, उनके पहले से वो जिंदा हो ही नहीं गई थी आघाड़ी। वो इंडिया आघाड़ी का कोई मिलाप नहीं है, वो सिर्फ अकेले अकेले सब चल रहे हैं। सबको अपनी अपनी पार्टी की दुकान चलानी है, इसलिए वो अपने अपने किस तरीके से बचाए पार्टी, इसके पीछे पड़े हैं। लेकिन कुछ तो दिखाना चाहिए, किसी को ना नहीं बोल सकते। इसके लिए वो अभी 1 बैठक 2 बैठक 3 बैठक कर रहे हैं। उनको ना नेता मिल रहा है, उनको ना एजेंडा मिल रहा है, उनको ना कुछ सूझ रहा है। तो मुझे लगता है कि बच्चे कुछ भी अभी निकल जाएंगे। अभी 3 तो गए, मेन जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए सोच रहे थे वो भी निकल रहे, तो अभी वो बचेगा क्या? तो मुझे लगता है कि राम मंदिर का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो होना था, वो अभी सामने आ रहा है, इतना ही है। लेकिन प्रदीप पेशकर साहब, जब नीतीश कुमार जी ने दोबारा पलटी खाई तीसरी बार, तब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सबने ये कहा था अब इनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। लेकिन नहीं, राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी ने बोला होगा। सर अमित शाह साहब ने खुद बोला, अमित शाह साहब ने खुद बोला था। लेकिन लगता है कि पॉलिटिक्स में कभी भी कोई किसी के साथ हाथ मिला सकता है, लगता है मुझको। तो नीतीश जी आपके पास वापस आ रहे हैं सर। और तो छोड़िए, परसों ही गिरिराज किशोर साहब ने कहा कि दामाद जी जो हैं हमारे नीतीश कुमार जी मायका जाने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि मायके के दरवाजे बंद हैं। ऐसा गिरिराज किशोर जी ने कल ही कहा है। और लेकिन आज मायका है कि ससुराल है उनका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दरवाजे खुल गए। प्रदीप पेशकर साहब,
आपको बधाई वैसे, आपको वैसे मुबारकबाद। नहीं, ऐसा है, मोदी जी के काम पर अगर कोई मुहर लगाता है तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। और नीतीश कुमार जी पहले भी थे, गए क्यों थे ये सवाल है ही, और रहेगा भी। लेकिन अगर शाम का बुला जो बोलते हैं कि वो सुबह घर आ गया तो अच्छी बात है, या सुबह का बुला शाम को घर आया तो अच्छी बात है। अब क्या उनको कुछ अलग संज्ञा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर साहब को जो भारत रत्न दिया गया, उसको लेकर के बिहार के अंदर पूरी बिहार की जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है और बिल्कुल सराहना कर रही है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की। ये डिमांड बहुत सालों से चल रही थी कि कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दिया जाए और किसी ने आज तक नहीं किया, मोदी जी ने किया। इसको लेकर के मुझे लगता है कि नीतीश कुमार साहब जो है, उनको पता था कि जनता के सामने वो नहीं जा सकते, अब मोदी जी के खिलाफ तो नहीं जा सकते, सीधी सादी बात है। एक बार कर्पूरी ठाकुर जी को इतना बड़ा ऐसी इज्जत अफजाई करती, उनको भारत रत्न दे दिया, फिर किस मुंह से जाएंगे आप? प्रदीप पेशकर साहब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक ही बात नहीं, इससे कई गुना ज्यादा चीजें मोदी जी ने ऐसे की है कि उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर सकता है। ये अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो या ट्राइबल के लिए किया हुआ काम देखो, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया हुआ काम बोलो, और इसके ऊपर कर्पूरी ठाकुर जी तो भारत रत्न के हकदार थे ही, क्योंकि वो 3 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं वहां के, और कितनी उनके समाज के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया और विपरीत परिस्थिति में काम किया। तो ये हम उनकी सराहना क्यों नहीं करें। और आज अभी आप देखते हैं कि पद्मश्री, भारत रत्न और पद्म भूषण अवार्ड कैसे दिए जाते हैं, किन किन लोगों को दिए जाते हैं, जिनका नाम भी नहीं सुना पता नहीं। अरे सर, जिन्होंने जेन्युइनली अचीव किया है, जो सोशलाइट नहीं है, जो पेज 3 के ऊपर जिनकी फोटो वोटो नहीं आती है, जिन्होंने असल में काम किया है, वो लोग हैं। पता भी नहीं है, पहली बार लोग सुन रहे हैं, पहली बार लोग उनका नाम सुन रहे हैं, ऐसे लोग इसमें दिख रहे हैं। तो मानना चाहिए कि मोदी जी का जो सिलेक्शन है या सरकार का जो प्रोसीजर है वो अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। और तो सबसे पहली बात यह है कि पद्मश्री अवार्ड के लिए तो खुद नॉमिनेट अपने को कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, पहले से ऐसा नहीं था। पहले से यह था कि किसी के नजदीक वाला, किसी का रिश्तेदार, या आपने ही नाम लिया, वैसे फेज 3 वाले। तो ये बात अभी दिखाई नहीं देगी। जो सही में जिनका समाज में काम है और काम उभर कर दिखता है, और कहीं कोने में काम करो भारत के, लेकिन वो समाज के अंत्योदय के लिए अगर काम है तो उसको उसकी सराहना होनी चाहिए। भारतवर्ष पर उसका उपकार है और उसका सम्मान भारत से करना चाहिए। यही मोदी जी की नीति है। नीति के आधार पर, ये नीति के आधार पर अगर कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही काम किया है, और नीतीश कुमार जी भी उसका स्वागत कर रहे हैं। And here, this is for the information of our viewers, Mr. Rohan Bopana has just been nominated for the Padma Shri. He has been given the Padma Shri, and today he has become the oldest player in the world to win a Grand Slam title. 43 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है डबल्स में। He has become the oldest player in the world to achieve that feat, and it is the Modi government that gave him a Padma Shri for this year only. इस साल के पद्म श्री लिस्ट में रोहन बोपन्ना है। सर, 43 साल की उम्र में डबल जीतना, वो भी प्रोफेशनल टेनिस टूर पे, मतलब किसी को विश्वास नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तंदुरुस्ती और चुस्ती को सलाम करना चाहिए उनके। एब्सोल्युटली जी। पेशकर साहब, कमिंग बैक टू मराठा रिजर्वेशंस। अब मराठा रिजर्वेशंस, एकनाथ शिंदे जी सीएम, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब, डेप्यूटी चीफ अजित पवार सेइंग फैंटास्टिक, ट्रिपल इंजन का बड़ा अचीवमेंट है, इट्स फैबुलस। शरद पवार जी, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे जी हैज बीन स्टंट। तो कभी कोई सोचा नहीं था कि इतने आसानी से जो एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार से हुआ। बट कंफ्यूजन पेशकर साहब अभी भी है। भुजबल साहब बोल रहे हैं कि ये ओबीसी पर अन्याय है या मराठाओं का फसवनुक, मराठाओं का फसवनुक या ओबीसी पर अन्याय, भुजबल साहब का कहना है। तो आगे जाके जो एडवोकेट सदावर्ते है जिसने हाईकोर्ट में अप्रोच किया था बॉम्बे,
तो उन्होंने कहा कि नॉट GR नोटिफिकेशन, इट इज अ नोटिफिकेशन नोटिस ऑफ नोटिफिकेशन। अब ये क्या, ये सब एक जो चल रहा, भले मानकर चलेंगे पाटिल जी और पूरे लोग वापस चले गए अपने अपने, बट ये कंफ्यूजन प्रिवेलिंग। राज ठाकरे जी ने बोला कि मैं मुबारकबाद दे देता हूं, मगर कभी होगा ये एकनाथ शिंदे जी को पूछ लेना। तो ये क्या कंफ्यूजन अभी भी है? हाउ डू यू सी इट पेशकर साहब? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरांगे जी इतने पक्के नेता है और उनके साथ में इतनी सूत्रबद्ध परिस्थिति से उनके साथ में एडवोकेट्स की टीम है, उनको सब पता है। वो ऐसे मानने वाले नेता नहीं है। आपने देखा है 4 महीने किस तरीके से उन्होंने किया है। तो विरोधी तो बोलेंगे ही, उनको ऐसा लगेगा ही कि इस प्रकार से करो। देखिए 54 लाख लोगों के रिकॉर्ड्स मिल गए और उसमें से 37 लाख लोगों को वो सर्टिफिकेशन मिल भी गया है, कुंभी प्रमाण पत्र जो है वो मिल भी गया है। इसको विरोधी क्या बोलेंगे? अभी मिला है ना, अभी हो रहा है। तो राज ठाकरे जी क्या बोलते हैं और शरद पवार जी क्या बोलते हैं, उद्धव जी क्या बोलते हैं, वो अभी बोलते ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी रिजल्ट तो देवेंद्र जी के हक में गया है, अभी रिजल्ट तो एकनाथ शिंदे जी के हक में गया है। तो वो बोलेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी जरांगे जी एंड उनकी टीम सेटिस्फाइड है और जो पहली बार जो 70 साल में किसी ने नहीं किया वो शिंदे जी ने करके दिखाया है। जबरदस्त, और इस जबरदस्त करके दिखाया है। और इसमें क्या है, वे आउट निकालने की जरूरत थी और सही कानून में बैठने वाला वे आउट, तो ये निकाला है। अभी जब तक कोर्ट उसको डिसीजन देगा नहीं तो ये तो चलती रहेगी बात। लेकिन साहब अभी आप पद्मा अवार्ड्स की बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दिया गया, बहुत जबरदस्त चीज है, मानते हैं। अभी प्रदीप जी और मैं यही बात कर रहे थे कि वीर सावरकर का नंबर कब आएगा सर? बिल्कुल आना चाहिए। कब आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। अभी डिमांड तो है ही सर, बहुत पहले से डिमांड है, अभी से नहीं। और मैं नासिक से हूं तो मेरा ज्यादा झुकाव है कि डिमांड में बिल्कुल होनी चाहिए जी। लेकिन कब तक हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो तो सरकार पे निर्भर है। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ। 10 साल में पार्टी तो इतनी कह सकती है कि होना चाहिए। इसका मतलब अब होगा तो 2025 में ही होगा, उसके पहले तो हो नहीं सकता, क्योंकि पद्मा अवार्ड अभी तो 25 में ही होगा जी। क्योंकि अभी तो क्या है, अवार्ड्स की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वेरी फ्रैंकली अपने सब दर्शकों के साथ में ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर जी को जल्द से जल्द, स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जी को जल्द से जल्द भारत रत्न दिया जाए। ये मेरी खुद की डिमांड है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदीप पेशकर साहब इस डिमांड में अपनी भी आवाज डालेंगे, बल्कि हमसे ज्यादा बोलेंगे। हमारी आवाज आपसे आगे हम रहेंगे जी। और आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जरूर भेजें, अपने रिकमेंडेशन भेजें, लाखों की तादाद में भेजें, करोड़ों की तादाद में भेजें कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न जल्द से जल्द दिया जाए। ये मेरी अपील है मेरे सारे दर्शकों से जी। 26 फरवरी उनकी पुण्यतिथि होती है वीर सावरकर जी की, उसी दिन हम लोग भेज देंगे सब। ये बहुत हर एक को भेजना चाहिए, हम लोग तो भेजेंगे। आप सब लोग भी मेहनत करें इसके लिए कि वास्तविकता में जो असल में जो स्वतंत्र सेनानी थे उनकी अब इज्जत अफजाई होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो सही है। या पेशकर साहब, राहुल गांधी जी भले अभी जो इंडी अलायंस है, जो आपने इंडी अलायंस कहते थे, इंडिया अलायंस वो कहते थे, बिखरता दिख रहा है, बिखरता। ममता नहीं है, नीतीश नहीं है, वाईएसआर केसीआर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे कुछ पता नहीं है, केजरीवाल जी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन उठाने लगे। तो इंडिया अलायंस, बट ड्यूरिंग दिस जोड़ो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी एंड आरएसएस आर अटैकिंग द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के लोकतंत्र के फाउंडेशंस है उसको अटैक कर रहे हैं। द आइडिया दैट सब all religious religions should live harmoniously, that particular foundation has been attacked by BJP and RSS. तो क्या बीजेपी और आरएसएस ये जो हार्मोनियस संतुलन है रिलीजन्स का, उसका पिलर्स को तोड़ रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं? आप इस स्टेटमेंट को पेशकर साहब कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी का? उनके स्टेटमेंट पे बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है।
उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उनको अगर भारत जोड़ने का था तो पीओके से स्टार्ट करते, इधर से इधर घूमते नहीं टूरिस्ट के जैसा, एक बात। और दूसरी बात, अगर न्याय देना ही है तो न्याय किसको देना है और किसके अगेंस्ट में देना है, ये थोड़ा स्पष्ट करते तो अच्छा था। उनके पार्टी के जो नेता है उनको वो न्याय नहीं दे सकते, जिस राज्य में उनकी सरकार है उनको, जनता को न्याय नहीं दे सकते, और ये चले न्याय देने के लिए उनके इंडिया अलायंस को न्याय नहीं दे सकते, उनके अलायंस के पार्टनर जो है उनको न्याय नहीं दे सकते, तो वो कहां से ये न्याय यात्रा निकालेंगे। तो न्याय देना क्या होता है, मैं अभी बोलता हूं कि अभी जनमन जो स्कीम मोदी जी ने किया है जनता के लिए, ट्राइबल जनता के लिए, जो आदिवासी न्याय महाअभियान, तो उसकी बात करें तो ये न्याय की बात कहां से आ गई। ये इनका न्याय मतलब सत्ता में बैठो और भारत को लूटो, तो ये करने के लिए इनकी सब यात्रा है। तो उनके स्टेटमेंट पे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं या बात करने की जरूरत नहीं है। उनको ये पक्का पता है अभी पूरा देश जय श्री राम बोल रहा है और बाद में जय मोदी जी बोलेगा, तो इनका तो दुकान अभी बंद हो गया है। आप सही बोल रहे पेशकर साहब। पीएम जनमन के माध्यम से 75 वीक ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किए मोदी जी ने, और करीबन 25,000 करोड़ के आसपास वहां पर उन्होंने उनको अलॉट भी कर दिया है, जिसमें ये गरीब जो रोड जो इलाका है, जो गरीब इलाका है, दुर्गम क्षेत्र, वहां रोड, वहां दूर संचार, इलेक्ट्रिसिटी, होम्स जो अभी तक वंचित थे 18 स्टेट से, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई किया 3 यूनियन टेरिटरीज वगैरह में। तो ये अभी तक वंचित है ट्राइबल, ये मोदी जी है कि इनको आइडेंटिफाई अभी कर रहे हैं। यानी इंडिपेंडेंस, आप मानते कि इंडिपेंडेंस से हम लोग इस ट्राइबल एरियाज को टोटली दुर्लक्ष कर रहा था पेशकर साहब। 70 साल में जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंची, तो आज तक गांव तक पहुंची थी, वो मोदी जी आने के बाद में ही उन्होंने किया। दीनदयाल उपाध्याय योजना, जो उज्ज्वल ये जो योजना की थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उससे पहुंचाई गई थी गांव तक। आज इसकी अच्छाई क्या है, ये स्कीम में बाहर का ही देखिए, 20 घरों के नीचे जो आदिवासी क्षेत्र है जिसमें सिर्फ 20 घर है, 30 घर है, 15 घर है, ऐसे चुन चुन के निकाले हैं। वो 2500 विलेज उसका काउंट आया है, और उसमें से 22,000 लोगों के घर में पानी का कनेक्शन जाएगा। 4.9 लाख पक्का घर बनेंगे, 8,000 किलोमीटर का कनेक्टिविटी का रोड का नेटवर्क बनेगा, 1,000 आंगनवाड़ी बनेगी। अब सोचिए हॉस्टल्स बनेंगे। आप सोचिए कि कितना सारा बारकाई से सोचा गया है उनके बारे में। जहां 20 घर है सिर्फ, उस आदिवासी झोपड़ी तक सिर्फ वोटिंग के साथ, जितने कांग्रेस ने शासनकाल है कांग्रेस का, उसमें सिर्फ वोटिंग के लिए लोग जाते थे। जहां रास्ता नहीं है जाकर वहां सिर्फ वोटिंग अपना बैलेट बॉक्स लेके जाते थे, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दिया तब कि इनके पास पानी नहीं है, इनके पास लाइट नहीं है, इनके पास रोड नहीं है, इनके पास शिक्षा का साधन नहीं है, आरोग्य का साधन नहीं है, कोई दवाखाना नहीं है, हेल्थ का कुछ नहीं है, ये दिखाई नहीं दिया। मोदी जी ने वो सोचा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अंत्योदय का सोचने वाला सरकार जो है वो सिर्फ भाजपा सरकार है। अंत्योदय की सोच रखकर काम करने वाली सरकार, तो इससे ज्यादा बढ़िया न्याय हो ही नहीं सकता है, मैं कहता हूं। लेकिन यहां पर एक चीज तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर, इनफैक्ट 1956 से भारतीय जनसंघ के जमाने से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जो पहला इलेक्शन मैनिफेस्टो छपा था भारतीय जनसंघ का, जब आपका इलेक्शन सिंबल दिया हुआ करता था, दिया, जी हाँ, दिया हुआ करता था, लैंप हुआ करता था, और आपकी जो लाइन होती थी, स्लोगन जो होता था, दीप से दीप जले, वोट से देश देश बने, अभी तक याद है मुझको। तो तब से राम मंदिर मैनिफेस्टो में था, रिपील ऑफ आर्टिकल 370 मैनिफेस्टो में था, रिपील और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी मैनिफेस्टो में था। और इसमें से 2 जो हैं आपने पूरे कर दिए। अब मुझे लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी काम चल रहा है। इनफैक्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट, फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर व्यूअर्स, इज अबाउट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन द लाइंस ऑफ गोवा। गोवा में पहले से ही इंप्लीमेंटेड है, वैसे ही उत्तराखंड भी अपने स्टेट में, अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड दे आर अबाउट टू इम्प्लीमेंट। तो वो भी जल्दी हो जाएगा सर,
यूनिफॉर्म से? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होना चाहिए और भाजपा के एजेंडा में है और इस बार के मैनिफेस्टो में भी रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब करना है वो सरकार डिसाइड करती है, कब करना है वो मोदी जी, अमित जी, नड्डा जी, ये जो भी है लोग वो डिसाइड करेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आकर रहेगा। जी पेशकर साहब, जननायक कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जननायक है, जननायक, लोगों के बीच में रहने वाले, और उनपे जो अन्याय, उनको मंदिर में, आप हंसते रहते हो जब, उनको मंदिर में जाने नहीं दिया, आसाम में मंदिर में जाने से रोका, वो लगातार लोगों के न्याय के लिए इस पूरे संघर्ष कर रहे हैं। युवा न्याय, युवाओं का न्याय के लिए, भागीदारी न्याय, नारियों का न्याय के लिए, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, ये श्रमिक न्याय, यानी ये पूरे देश पीड़ित एक एरिया है, उन्होंने सेगमेंट कर दिया है, सबको न्याय दिला देंगे और कांग्रेस का जननायक राहुल गांधी जी न्याय दिलाएंगे। पेशकर साहब, नहीं, वो जननायक है क्या नहीं है वो तो अभी जनता इतने बार डिसाइड की है, कितने बार कितने चुनाव में हारे हैं उसकी लिस्ट आपके पास ज्यादा होगी मेरे से। और वो जननायक तो छोड़ो, आप मंदिर की बात की है आपने, तो मैं बोलता हूं कि अभी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया था, वो इनविटेशन दिया था, क्यों नहीं गए भाई? जहां नहीं जाना है वहां जाएंगे और जहां बुलाया है, सम्मान के साथ बुलाया है, वहां बोले हम नहीं जाएंगे। तो ये मंदिर की दोगली बातें, ये चुनावी हिंदू है और ये चुनावी धार्मिकता के पीछे पड़े हैं। उनको लगता है हम कॉपी करें मोदी जी की। मोदी जी हर क्षेत्र में जाते हैं, नासिक में आए तो कालाराम मंदिर के दर्शन किए, वहां से अनुष्ठान शुरू किया और उनको समझ में नहीं आता है कि आप करें क्या। तो कॉपी करने जाने के बजाय उनकी खुद की सोच से कुछ करना चाहिए राहुल गांधी जी ने। तो ये मोदी जी की कॉपी करना उनको छोड़ दो, ये हमारी सलाह है। Right, but I hope the ordinance will be acceptable to Mr. Jarangi Patil. उन्होंने कहा है कि पब्लिक को दिखाने के पहले आपको दिखा दिया जाएगा। I think that will be by about Monday or Tuesday. उसके बाद ही पब्लिक में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि that this ordinance will stand in a court of law, कि कानूनन ये रिवर्स नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों ने इसके ऊपर बहुत सोच रखी होगी, they would have given a lot of thought to it, they would have consulted all the lawyers because after all government has access to the best legal brains. आपको लगता है कि इस बार कोर्ट में कोई मुश्किल नहीं होगी प्रदीप पेशकर साहब? नहीं, कुछ नहीं होगी। पहले बार भी दिया था और वो सही टिका था। अगर कुछ सजेशंस कोर्ट के आएंगे तो उसको बिल्कुल इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार की इच्छा आरक्षण देने की है। इसके लिए ही पूरे सोच समझ के, कहीं तो नहीं, अगर ऐसा ही देना था तो 4 महीने पहले ही दे देते थे, इतने दिन उनको तकलीफ क्यों दी? फिर आज तक क्या सोच कर किया है और सभी एंगल को और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है, जो ड्राफ्ट बनाया है वो, और उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। ऐसे नहीं है, वो जो ड्राफ्ट बनाते हैं वो तो सेक्रेटरी, आईएएस और ये लोग बनाते हैं, एडवोकेट्स बनाते हैं, बराबर है। तो मुझे लगता है कि वो कुछ उसमें कमियां आएगी। अगर कुछ भी उसमें आया तो भी सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा। इस प्रकार के जो लॉ पॉइंट्स है वो उनके सामने रखे जाएंगे और अंतिमतः जीत जरंगे पाटिल जी की ही होगी, ये पक्का है। पेशकर साहब, एक चीज आप अगर बोलना, बिकॉज आपका सोलर और इस एनर्जी में थोड़ा नॉलेज है। मोदी साहब ने कहा कि जिस प्रकार से 1 करोड़ गरीब लोगों को सोलर पैनल लेके उसी दिन अनाउंस कर दिया था जिस दिन प्राण प्रतिष्ठान हुआ राम मंदिर का, सूर्योदय योजना। यस सूर्योदय। तो इनके सक्सेस बोले कि होगा, 1 करोड़ गरीब लोगों को मैं लगा के दूंगा सोलर पैनल्स। मल्लिकार्जुन खड़गे इमीडिएटली रिएक्ट कर दिए कि सोलर एनर्जी जहां तक है, बीजेपी 10 साल में जो भी प्रॉमिस किया 70% अनफुलफिल्ड है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है। और एनर्जी जनरेशन इज ओनली 20%, 1/5 ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इफ यू वांट टू आंसर दिस, क्या आपको आंसर करना है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कि 70% अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस एनर्जी सेक्टर में? नहीं, एनर्जी सेक्टर में कहां कमी है? फुलफिलमेंट मतलब हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं सोलर इंस्टॉल करने के बाद में,
वो ठीक है, 2 साल कोरोना के गए इसलिए ज्यादा सोलर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ होगा कहीं पर, लेकिन आज महाराष्ट्र में पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर किसानों को दिन में बिजली चाहिए, तो देवेंद्र जी ने एक बड़ा नए तरीके से सोचकर एक स्कीम निकाली है। तो एग्रीकल्चर के लिए पूरे फीडर सोलार पे होने जा रहे हैं, हर फीडर वो सोलार पे होगा। वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है, अभी 2025 तक तो 30,000 मेगावाट का काम हो जाएगा। तो इतना सारा 7,000 मेगावाट, सॉरी 7,000 मेगावाट का काम तो 2025 तक तो पूरा हो जाएगा, पूरे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। और गुजरात में तो सबसे आगे है इंस्टॉलेशन। खरगे जी बोलते हैं तो कुछ उनके पास गलत इंफॉर्मेशन गई होगी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये जो नई चीज है जो सूर्योदय योजना है ना, वो अलग है। पूरे ग्रिड कनेक्टेड सोलर देना अलग, और इंडिविजुअल यूनिट को, इंडिविजुअल ओनर को या झोपड़ी पर या गरीब घर में सोलर देना अलग चीज है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। जहां पर हमारी बिजली पहुंचती नहीं है और पूरी तरीके से नहीं जाएगी, वहां पर सोलर पैनल देने की ये योजना है छोटे छोटे गांवों तक। और अभी तो क्या हो गया कि इवन टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव, दी सोलर पैनल्स हैव बिकम वेरी थिन। वो जो जर्मन टेक्नोलॉजी से अभी तो यहाँ पे हिंदुस्तान में भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। पहले बहुत हैवी हुआ करते थे, दे बिकम वेरी थिन। एंड द बैटरी लाइफ, नीचे जो बैटरी है, स्टोरेज हैज बिकम फैंटास्टिक। पहले क्या होता था, स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम होती थी कि भाई देखो धूप तो निकली है सुबह, तो सोलर एनर्जी को आप स्टोर कैसे करेंगे ताकि रात को भी काम कर सके। दैट प्रॉब्लम हैज आल्सो बीन सॉल्व्ड। So I think it's a very practical solution. I really hope it works. लिथियम आयन बैटरीज, अभी लिथियम आयन बैटरीज है, सोडियम आयन बैटरीज है, अभी हाइड्रोजन सेल तक हम जा रहे हैं। उसमें काफी सारे चीजें बड़े बड़े इन्वेंशन के साथ में सामने आ रही है। तो हर घर में सोलर पैनल और उसकी बैटरी वो लगाना एक ड्राइव है मोदी जी का। आप 1 करोड़ बोल रहे हैं, मेरे जानकारी के हिसाब से वो 3 करोड़ का कमिटमेंट उनका है। क्या बात। I hope it happens very frankly because it will solve a lot of problems. सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए साहब क्या है कि हाइड्रो पावर हैज रीच्ड इट्स लिमिट। इससे ज्यादा आप अभी कर नहीं सकते। अगर आप करने को जाएंगे तो पर्यावरण के ऊपर उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोल के ऊपर जाएंगे, अगेन वी हैव द सेम प्रॉब्लम। गैस फायर्ड, अगेन द सेम प्रॉब्लम। सो द बेस्ट इज सोलर एनर्जी which is in terms of input and output, for the least amount of input you get fantastic output in solar. So solar I think is the way forward. और हिंदुस्तान में एक चीज की कमी नहीं है साहब, धूप की कमी नहीं है। धूप की कमी नहीं है कहीं पर भी हिंदुस्तान में। सूर्य की कमी नहीं है। सूर्य ऊर्जा की वजह से हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। प्रदीप पेशकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको बधाई। आई होप the Maratha reservation which has been given and promised today, I hope it stands in court. That's the only thing that I can hope for. Thank you very much, sir. Namaskar. Thank you very much. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Well, at the moment